आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। तीन चार डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट, उनके अंदर क्या अलग ऑपरेशन हो सकते हैं, हाउ कैन दे बी यूज्ड, एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट टर्नरी ऑपरेटर व्हिच आर नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ एल्स, यू मे से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल हमारे रियल लाइफ की तरह एकदम उसको अगर ट्राई करोगे रियल लाइफ के सिचुएशन को इससे रिलेट करने का तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Now these if else statement are used to perform operation which are based on a specific condition. कई बार आपकी लाइफ में सिनेरियो आता होगा that you are having multiple options or let us say you are having multiple tasks to do, okay, but each option is based on a particular condition, or let's say each task that you need to execute is based on a particular condition. For example, अगर तुम्हें खाना खाना है, now this is based on the condition that if you are hungry or not. So basically if else is nothing but it is a tool in programming which helps in dealing with conditions and options. Okay, so the most important thing in this if else is option and conditions. आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो पर्टिकुलर ऑप्शंस एंड कंडीशन से डील कर रहा हो। अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दें तो I will stay home if it is raining outside. Now see, this I will stay home is an option which is dependent upon if it is raining outside or not. So basically I can say that if it is raining outside or not is the condition, right, which will determine that I will be staying home or not. एक और example दें तो I will eat food if I am hungry. In these two example, be it eating food or be it staying home, these two particular things are based on the condition. What are the conditions? The conditions are if I am hungry and in this particular case if it is raining outside. So आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि यहाँ पर this particular statement is totally dependent upon this condition. अगर ये condition fulfill हुई then we will be going with this particular option, right? So computer programming में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास होता है if else. Okay, we are having an option or you might be having multiple options, okay, and then you will be having conditions and the options will be dependent upon the conditions. So this is the reason why if else is called conditional statement. Now let us talk about options. Okay, consider that you are having a particular task, only one task, okay, and this task is based upon a certain condition. अगर ये condition fulfill होगा then you will be carrying out this task. For example, समझ लो कि your eating food is totally dependent if you are hungry or not. This is the case where you are having only one option. Okay, there might be scenarios जहाँ पर आपके पास multiple options होंगे. For example, let us consider that if today is Sunday, I am listing out the options. Okay, I can stay home and watch Netflix. You can go out with your friends. You can study, or you can learn a new skill, or let's say you will sleep for the whole day. Now see, I have listed 5 different options. Obviously you cannot perform all these 5 operations all at once, right? Now all these options will be based on a certain condition. For example, let us say this option 1 that you can stay home and watch movies is based on a condition that if it is raining outside. This option 2, you can go out with your friends, is based on the condition that if it is your birthday. This option 3 is based on a condition that if tomorrow is your exam. This option 4 is based on the fact that if you want to gain knowledge. This option 5 is based on the condition if you want to be ALSI for the whole day. So all these options are based on a particular condition, right? This was a scenario in real life in which you had to take a decision based on a condition, right? Programming में भी बिल्कुल वैसा ही होता है. You are given a condition and then you will be having an option. You have to take a decision based on a condition, right? One of the tool for handling this kind of situation is if else. Now you might have got a good idea what is actually if else, right? Now let us dive into the syntax part. The first and the foremost thing you need to understand is that it is all about options. There might be scenarios जहाँ पे सिर्फ आपके पास एक option हो. There might be scenarios जहाँ पर आपके पास 2 option हो. There might be scenarios where you are having more than 2 options. Okay, let us first deal with an example which is having only one option. So the syntax for writing that is write an if here. You need to write down the condition here. Okay, just put these brackets and what is the decision or what is the task that you want to do, what is the decision that you want to take will be
written within this if. Okay, for example, you will be given a variable, let us say a, and I will be assigning a particular value to this variable. What you need to do is you need to print this value if this value is positive. That's it. देखो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है just try to find out what is your task and then think about the condition. Okay, so what is my task? My task is to print the value of the variable. Now when will I be executing this task? If the value of a is positive, that is it is greater than 0. Now think carefully. Did I tell you what to do if the number stored in a is negative or 0? No, I did not. Okay, so this is a particular example in which you are having only if. Okay, there is no else part. Okay, let us quickly run the program. इसको comment out करना पड़ेगा. Let us say I am giving 100. See, the value of a is 100. Execute हो रहा है. Now let us say I am giving a negative value. Let us say minus 96. See, nothing is getting printed, right? So this was the example where you are having only an if. There is no else. Okay. तो basically else लगाते कब है? Else is written जब आपको पता हो कि क्या करना है when this if won't work. मतलब कि अगर ये कंडीशन फेल होता है, a is greater than 0 वाला कंडीशन फेल होता है, तब मुझे क्या करना है. अगर आपके पास ये जवाब है then you will be writing an else part. Okay, and else का भी syntax बिल्कुल सिंपल होता है. यहाँ पर भी else लिखो and then put the brackets. Now one thing to notice is that I did not write any condition in the else statement, right? ऐसा क्यों? Let us try to understand this thing with a simple program. Consider that you are given a number and you need to tell whether the number is even or whether the number is odd. So what are the options? That the number can be even or the number can be odd. What do you think? How many conditions do you need? दो कंडीशन लगेंगे क्या? एक कंडीशन इवन चेक करने के लिए, एक कंडीशन ऑड चेक करने के लिए? I don't think so. एक ही कंडीशन से दोनों चेक हो जाएंगे. How? देखो. Consider that the number given to you is 10. So is it even or is it odd? आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा even. How did you check it? Even चेक करने का तरीका होता है कि if the number is completely divisible by 2 then it is even. Now how do you check if a number is completely divisible by 2? You use the mod operator. Okay, this mod operator basically gives you the remainder of a number when you divide it by 2. Okay, अगर यहाँ पे मैं 3 लिखता तो फिर this mod operator would have given you the remainder if a number n is divided by 3. Okay, so अगर मेरा remainder 0 आ जा रहा है 2 से divide करने के बाद then the number is even, right? फॉर एग्जाम्पल 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 से 10, द रिमाइंडर इज 0. एंड उसी जगह अगर मैं 11 को डिवाइड करूं 2 से तो 2 5 से 10 एंड यू गेट अ रिमाइंडर 1 व्हिच इंप्लाइज दैट 11 इज ऑड, राइट? सो इफ आई वांट टू चेक इफ अ नंबर इज इवन देन I will be writing that if the number is divisible by 2. Now corresponding to this condition, what is the option you are having? The option or the task you can say is that I need to print, let us say, even number. Now what is the other option you are having? The other option is that the number can be odd. Don't you think that this is the last option, that the number can be odd is the last option, right? Because आपके पास कोई और option नहीं है. If the number is not even, then definitely it has to be odd. So do you think that do I need to check any condition for writing the else part? I don't think so. अगर कोई number even नहीं है then definitely that number will be a odd number, right? समझने वाली बात ये है कि else के अंदर condition क्यों नहीं लगा? Because you are having only two options. The first option is that the number can be even. The second option is that the number can be odd, and that option is the last option you are having. Okay, let us quickly code it down. How to check if a number is even? If that particular number, in our case which is a, is divisible by 2, that is a mod 2 is equal to 0, then we will be saying that the number is even. Okay, and else, the syntax for writing else is do not write any condition and then put on the brackets and write what is the next option you are having. The option is the number is odd. One thing more which I would like to point out is that if you are having only one statement under if, or if you are having only one statement under else, you can just ignore these brackets. Okay, let us first run the program with the brackets on.
Let us say I am giving a number, let's say 45. So the number is odd. Do a thing, let us print that enter a number. Okay, it does nothing but makes the output screen look good. That's it. See, it is clearly asking enter a number. Let us say I am giving 56. So the number is even. You just saw that it is working for both even and odd. Okay. Now what I was telling about the bracket, that if you are having only one statement under if and else, then you can ignore the brackets. Let us say I am entering 102. So the number is even. Okay. अगर कोई error होता तो फिर वो error दे देता. One thing which I would like to point out is that if the condition in this particular block is executed, that is, if this if block is executed, the compiler won't be checking the else part at all. अगर आप A वाले रास्ते पर जा रहे हो, then definitely there is no point in checking क्या मैं C पर भी जा रहा हूँ. Obviously no. Okay. It is not so that आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हो सकते हैं. There might be a condition जहाँ पर आपके पास multiple options हो. Then how do you deal with those scenarios? What I am saying is, let us say that you are given two numbers A and B. Okay. What you need to do is, you need to tell me which one is greater. Now what are the options you are having? You are having that A can be greater. The other option is that B is greater. And the third option is that both are equal. Okay. तो देखो यहाँ पर तीन अलग अलग options हैं. So how do you deal with this particular scenario? Now here comes the part of else if. Okay. अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जा रहा है जहां पर आपके पास दो से ज्यादा टास्क हैं and you need to check and these tasks are based on different conditions. Okay, then you will be having an else if. So how do you use an else if? चलो एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां पर ये दोनों नंबर डिस्टिंक्ट होंगे. Okay, A and B will be given and both numbers are distinct. So you need to tell me which one is greater. Okay, so what are my options? That A can be greater or B can be greater. I will be writing down the option that A is larger. Okay. Now what is the condition for A to be larger? The condition is that if A is greater than B. Simple as that, right? Now अगर मैंने आपको बोल दिया कि दोनों नंबर डिस्टिंक्ट हैं and for example let us consider that you are having A as 10 and B as let us say 45. Okay, so if this particular condition is not fulfilled, then I don't need to check any other condition, then surely B is larger and this will work fine. Okay, but यहाँ पर तो मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया था ना कि these numbers are distinct. What if these numbers are not distinct? तब क्या करेंगे? Then I will be having three different options. Okay, these are my options. Okay, so what is the condition that A is larger? If A is greater than B, right? अगर A B से बड़ा होगा तभी A बड़ा होगा. Okay, what is this condition that B is larger? So the condition for B to be larger is that B should be greater than A. So देखो यहाँ पर तीन अलग अलग options हैं. So to write this particular condition, I will be writing else if. That if A is greater than B, print A is larger. Else if B is greater than A, then print B is larger. And what is the third or the last option you can say? That B and A both are equal. So मैं इसको कहाँ include करूँगा? I will be including this particular task or this particular option in the else part. ध्यान से समझो. If, else if and then else. If A is greater than B, A is larger. Else if there might be a scenario that B is larger. Okay, so you will be checking the condition that B is greater than A, and if both the above conditions are not fulfilled, then surely A and B are equal. Okay, let us quickly run the program. Let us say 45 and 45 are my two numbers. So देखो A and B are equal. Okay. Let us say 10 and 20. So देखो B is larger. Now this else if वाला पार्ट को मैं एक और बार डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. Okay. चलो नेटफ्लिक्स एंड प्राइम के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं. मान लो आपके पास जैसे कि फिलहाल 1500 रुपए हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लोगे, है ना. अगर मान लो आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको प्राइम के सब्सक्रिप्शन से काम चलाना पड़ेगा. ठीक है. अब मान लो आपके पास 1000 भी नहीं है, आपके पास मान लो सिर्फ 500 रुपए हैं. ठीक है, तो आपको हॉटस्टार लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? मान लो आपके पास 500 भी नहीं है, सिर्फ 300 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपको सोनी लिव से काम चलाना पड़ेगा. ओके. एंड मान लो आपके पास 300 रुपए भी नहीं है, तो आपको किससे काम चलाना पड़ेगा? भाई तब तो टेलीग्राम जिंदाबाद. ठीक है ना, तो आपको टेलीग्राम के भरोसे बैठना पड़ेगा. ठीक है. सो इसी चीज को कोड करने की कोशिश करते हैं.
एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन है, प्राइम का ऑप्शन है, हॉटस्टार का ऑप्शन है, सोनी लिव का ऑप्शन है, वैसे LIV होगा, एंड टेलीग्राम का लास्ट ऑप्शन है ना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जैसे मल्टीपल ऑप्शन है तो फिर मल्टीपल कंडीशंस भी आएंगी ऑब्वियसली। सो इसको मैं कोड कैसे करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर सिर्फ इफ और एल्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पर इफ और एल्स इफ का भी यूज होता है। इसको जल्दी से कोड करके देख लेते हैं तो अब आपको और बेटर समझ में आएगा। तो आपके पास जो पैसे हैं दैट इज ग्रेटर देन 1500, तब आप क्या डिसीजन लोगे, लेट्स गो फॉर नेटफ्लिक्स, है ना। तो इसको प्रिंट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द अदर ऑप्शन वी आर हैविंग, द अदर ऑप्शन वी आर हैविंग इज दैट आई कैन गो फॉर प्राइम, राइट। एंड वो ऑप्शन हमें कब चुनना है, जब हमारा ऑप्शन 1 फुलफिल ना हो, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ। अब ध्यान देना मैं यहाँ पर एल्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है। सो मैं यहाँ पर एल्स इफ लिखूंगा एंड इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिख दो। तो कंडीशन मेरा क्या है, इफ माई मनी व्हिच आई एम हैविंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। एंड मैं यहाँ पर अभी एक और चीज पॉइंट आउट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, आप कंडीशन को कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए कैसे करते हैं, ऑब्वियसली ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड सो यहाँ पर यूज होने वाला है एंड ऑपरेटर। एंड माई मनी इज लेस देन 1500, ठीक है। एक काम करते हैं, मनी इज इक्वल टू 1500 कर देते हैं कि अगर आपके पास 1500 एग्जैक्ट भी है तो फिर आप नेटफ्लिक्स ही जाओगे। सो यहाँ पर कंडीशन को ध्यान से समझो कि मेरे पास पैसे तो है भाई, पैसे जो है वो 1000 से ज्यादा है या फिर 1000 या 1000 से ज्यादा है, बट 1500 से कम है। यहाँ पे तो पहले समझो कि यहाँ पर मैंने ऑप्शंस को ऐसे कनेक्ट क्यों किया है यूजिंग एन एंड ऑपरेटर, बिकॉज देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि आपके पास 1000 से तो ज्यादा ही है बट 1500 से कम है ना। अब 1000 से ज्यादा यार 2000 भी होता है, तो अगर आपके पास 2000 होगा तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग फॉर नेटफ्लिक्स, यू वोंट बी ऑप्टिंग प्राइम, राइट। एंड मान लो ऊपर वाला कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, देन हमें क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है, गो फॉर प्राइम वीडियो। अब देखो आपके पास हो सकता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो, यानी कि आपके पास मान लो 1000 से भी कम है, मेरे पास जो पैसे हैं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, मेरे पास 500 से तो ज्यादा है, बट मेरे पास जो पैसे हैं दैट इज लेस देन 1000। यहाँ पर देखो कि मेरे पास जो पैसे हैं वो 500 से ज्यादा है बट 1000 से कम है। तो जब ये बट बीच में है ना तो उसे हमेशा एंड से कनेक्ट करना चाहिए कि मेरे पास जो पैसे हैं 500 से ज्यादा है बट यार वो 1000 से कम है, तो आपको उसे एंड ऑपरेटर से कनेक्ट करना होगा, ओके। एंड मान लो ऊपर के दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुए, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तब मेरे पास क्या ऑप्शन है, माय ऑप्शन इज आई विल बी ऑप्टिंग हॉटस्टार। व्हाट इफ आपके पास 500 से भी कम है, देन आप क्या करोगे, पहले तो आप सोचो कि आपके पास क्या ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास 500 से भी कम है तो क्या ये लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं। आई हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग विद सोनी लिव, देन अगेन आई विल बी कनेक्टिंग इट विद एल्स इफ, एंड मैं यहाँ पर वापस से कंडीशन डालूंगा दैट the money which I am having is less than 500 but it is greater than 300। अब सोचो जब आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब आपको क्या करना है, what is the decision you need to make, you will be going with Sony Live। आपके पास माइंड में एक थॉट आ सकता है कि यार मैं ये else if क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर मैं सिर्फ if से ये काम नहीं चला सकता था, एक्चुअली नहीं चला सकते थे। मैं अभी इसका रीजन बताऊंगा बट थोड़ी देर बाद। चलो फिलहाल तो मैं बताता हूं कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है, बिल्कुल है एक और ऑप्शन, बट वो लास्ट ऑप्शन है, वो लास्ट ऑप्शन है, तो इसलिए मैं उसे एल्स से कनेक्ट करने वाला हूं। एंड व्हाट इज दैट ऑप्शन, दैट आई विल बी गोइंग फॉर टेलीग्राम। तो मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दिया, टेलीग्राम जिंदाबाद। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यहाँ पर एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी बिकॉज दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आपके चारों ऑप्शन फुलफिल नहीं हुए देन ऑब्वियसली यू विल बी ऑप्टिंग फॉर टेलीग्राम, ओके। नाउ वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज दैट अगर मान लो पहला कंडीशन फुलफिल होता है देन इसके नीचे के कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे, ठीक है। मान लो दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है देन ऑब्वियसली ऊपर वाला कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ होगा तभी हम लोग नीचे आ रहे हैं। एंड अगर मान लो दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है देन दूसरे के नीचे जो भी कंडीशन लिखा हुआ है उनमें से कोई भी फुलफिल नहीं होने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। एक थॉट आपके माइंड में आ सकता है कि क्या यार मैं यहाँ पर एल्स इफ के बदले सिर्फ इफ नहीं लिख सकता था, यहाँ पे जहां पर मैंने एल्स इफ लगाया है यहाँ पर मैंने इफ क्यों नहीं लिखा। देखो जब मैंने बताया था कि अगर आप एल्स इफ लिखोगे तो फिर क्या होगा कि इफ का कंडीशन चेक होगा, अगर मान लो वो इफ का कंडीशन ट्रू है तो फिर उसके नीचे के एल्स इफ नहीं चेक होगा। बट अगर मान लो आप इफ की कंडीशन ऐसे लिख रहे हो ना तो फिर कंपाइलर क्या करेगा पता है, कंपाइलर ये लाइन नंबर 6 को भी चेक करेगा, कंपाइलर लाइन नंबर 9 को भी चेक करेगा, 12 को भी चेक करेगा, 15 को भी चेक करेगा। देयर माइट बी अ सिनेरियो जब आपका ऐसे आउटपुट गलत आ जाए, ठीक है। तो जब भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आप इफ यूज करो, उसके नीचे एल्स इफ यूज करता हो बिकॉज एल्स इफ का मतलब होता है इफ नॉट दैट ऑप्शन देन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस आई एम हैविंग, ओके। सो मैं इसको वापस यहाँ पर एल्स इफ जोड़ दे रहा हूँ। लेट अस डू अ थिंग, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर द अमाउंट यू आर हैविंग। अब इसको रन करते हैं, क्लियरली समझ में आएगा एक्चुअली।
ओके सेमीकोलन मिस कर दिया मैंने यहाँ पर। सो देखो क्लियरली हमसे ये पूछ रहा है एंटर द अमाउंट यू आर हैविंग, लेटर से आई एम हैविंग 100 रुपीज। ओके टेलीग्राम जिंदाबाद, तो ये मुझे कह रहा है टेलीग्राम के पास जाओ। अगेन लेट अस रन फॉर अनदर इनपुट, लेट अस से आई एम हैविंग 1200 रुपया है मेरे पास, ठीक है। देन इट इज सेइंग मी गो फॉर प्राइम, है ना। वन मोर थिंग आपके माइंड में ऐसा आ सकता था दैट आई कुड हैव रिटन लाइक दिस दैट एल्स इफ मनी इक्वल टू 1000। यार इससे प्रॉब्लम क्या होता पता है, अगर आपके पास एग्जैक्टली 1000 रुपीज है ना तभी ये प्रोग्राम काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1200 दिया तो 1200 के लिए काम कर रहा है ना, तो ये रेंज में नहीं काम कर पाता। आप अगर उसको एग्जैक्ट 1000 रुपीज दोगे तभी प्रोग्राम काम करेगा। सो दैट इज द रीजन कि मैंने ऐसे यूज नहीं किया इफ मनी इक्वल टू 1000। ओके लेट अस चेक इट फॉर अ डिफरेंट इनपुट, लेट अस एंटर 600, तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो 600 है तो आपको हॉटस्टार के संग जाना चाहिए, राइट। लेट अस चेक इफ सोनी लिव आ रहा है या नहीं। सो अगर मैंने मान लो अमाउंट डाला 300, सो बेसिकली ये मुझे कह रहा है सोनी लिव पे जाओ, एंड लिव की स्पेलिंग मैंने फिर से गलत लिख दी है, LIV होता है। ओके सो दिस वाज वन प्रोग्राम जिसमें मैंने बताया कि भाई इफ लिखो, एल्स इफ लिखते जाओ, एंड जो लास्ट ऑप्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्स लिखो, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं चेक हो रहा होता। कंपाइलर यहाँ पर तब ही पहुंचेगा जब ऊपर के सारे कंडीशंस फेल हो चुके हैं। So you need not to write any condition in the else part. Okay, I hope you are getting my point. Now let us look into one more thing called ternary operators. तो ternary operators are nothing but a substitute of if else. ठीक है, क्या होता है कि if else में 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ जाती हैं। ternary operator अगर आप यूज करोगे ना तो फिर वही कोड को आप एक लाइन में लिख सकते हो। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में कोड लिखा था, if a is greater than b then printf a is larger, right? एंड यहाँ पर मैंने लिखा था else printf b is larger। ये pf और printf एक ही चीज है। देखो ये जो कोड मैंने लिखा है ये बेसिकली इसने 4 या 5 लाइनें ली है ना। If I want to write it in one single line then I can take the help of ternary operator। तो सबसे पहले तो देखो आप if लिखते थे यहाँ पर, एंड उसके बाद कंडीशन लिखते थे ना, यहाँ पर if मत लिखो। टर्नरी ऑपरेटर जब आप यूज कर रहे हो तो आप if मत लिखो, सिर्फ कंडीशन लिखो। तो कंडीशन क्या है मेरी, a ग्रेटर देन b, ठीक है। मैं इसका यहाँ पर नीचे सिंटैक्स लिखते चल रहा हूँ। एंड देखो इसके बाद आप क्या पूछते थे, इफ a इज ग्रेटर देन b, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आता था ना आपके माइंड में कि येस या नो। अब क्या है यहाँ से आंसर आएगा, येस या नो आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डाल दो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला जाता है, एक्चुअली डाल दो नहीं, डाला जाता है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन मार्क के बाद आपको लिखना होता है कि व्हाट वाज योर ऑप्शन इफ दिस कंडीशन a would have been fulfilled था, और what is basically that decision you would be taking if option 1, if condition 1 is fulfilled। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऑप्शन 1, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के हिसाब से मेरा ऑप्शन 1 क्या था, I will be printing a is larger। एंड इसके बाद आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको कोलोन देना होता है। जैसे यहाँ पर आप एल्स लिखते हो ना, तो यहाँ पर आपको एल्स भी लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस खाली आप एक कोलोन दे दो, दिस वर्क्स फॉर एल्स। एंड एल्स में अब आप यहाँ पर कोई कंडीशन तो लिखते नहीं थे, तो यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं लिखना होता है। अब यहाँ पर आप अपना ऑप्शन 2 डाल दो या फिर स्टेटमेंट 2 डाल दो, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है। इस प्रोग्राम के मुताबिक मेरा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, b इज लार्जर। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा b इज लार्जर। इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं सिंटैक्स के हिसाब से। सो लेट अस डू अ थिंग, दो नंबर लेते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे a, b, एंड एक काम करते हैं, सुंदर सा मैसेज पहले प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर 2 नंबर्स। एंड स्कैनर से इनपुट लेते हैं एंड देखते हैं ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होता है, कंडीशन लिखना होता है। सो माय कंडीशन इज a इज ग्रेटर देन b, ओके। क्वेश्चन मार्क डालना है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन मार्क के बाद आप अपना ऑप्शन लिखो, वो ऑप्शन जब a इज ग्रेटर देन b होता तो क्या होता, मतलब what would I have done if a is greater than b, right? So I would have printed that a is larger, ठीक है। Now is there any other option that you would have gone with? Yes, there is another option. So we need to connect that with a colon. And what would I have done if a is not greater than b? That means अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो आप क्या करते, तो जो भी मुझे प्रिंट कर देना था that b is larger, that's it, and रन करते हैं। So enter 2 number, let us say 10 and 20। So देखो यहाँ पर b is larger आ गया, and let us say 120 डाला होता मैंने तो a is larger।
नाउ दिस इज ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर, ये ऐसे ही काम करता है। एक बहुत ही सिंटैक्स क्लियर करने वाला प्रोग्राम है, फाइंड द ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको लार्जेस्ट जो नंबर है वो निकालना होता है। तो कैसे निकालोगे, इफ एल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर है आपके पास, ए बी और सी। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये तो ए बड़ा हो सकता है, ये तो बी बड़ा हो सकता है, ये तो सी बड़ा हो सकता है। गिवन दैट ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, आपके पास ऑप्शन है कि ए इज लार्जर। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो ए सबसे बड़ा कब हो सकता है, ए सबसे बड़ा भैया तब होगा जब ए आपका जो है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तभी ना ए ग्रेटर होगा। अब इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन है, डेफिनेटली है, हमारे पास 2 और ऑप्शन है। तो 2 और ऑप्शन है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले तो एलसीफ लगाऊंगा। मेरे पास दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज बी इज लार्जेस्ट, राइट। एंड इसके लिए कंडीशन क्या है कि बी इज ग्रेटर देन ए ऑल्सो, यानी कि मैं एंड लिखूंगा बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब भी क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है, जी बिल्कुल है। एंड अब जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन हो सकता है, इसलिए मैं अब कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, अब सीधा मैं प्रिंट कर दूंगा C इज लार्जेस्ट, क्योंकि भाई अगर ऊपर के दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे डेफिनेटली C जो है वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। ओके, लेट अस कोड इट डाउन। तो सबसे पहले तो इफ A इज ग्रेटर देन B, एंड था ना, क्योंकि दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो फिर मुझे इसे एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड A इज ग्रेटर देन B, तब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रिंट कर देना चाहिए कि A इज लार्जेस्ट। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, बिकॉज जब आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हो ना इफ के नीचे, तो ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल होता है। एल्स इफ मेरा दूसरा कंडीशन क्या है, B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C। अगर ऐसा होता तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चुपचाप प्रिंट कर देना चाहिए B इज लार्जेस्ट, सिंपल एज दैट। ओके, एंड अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, हमारे पास बस एक ऑप्शन बचा है। तो क्या हमें कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एल्स लगाकर प्रिंट कर दूंगा C इज लार्जेस्ट, एंड इसे सेव करते हैं एंड यप्स रन करते हैं। सो एंटर 3 नंबर, लेट अस से मैंने 10 20 एंड 30 दे दिया, C इज द लार्जेस्ट, है ना। एंड इसी को अगर मैं लेट्स से 10 200 एंड देन 30 देता, देन B इज द लार्जेस्ट, एकदम सही काम कर रहा है हमारा। देखो यहाँ पर ये कोड लिखने के लिए आपने 1 2 3 4 5 6 लाइनें ली हैं। नाउ यू कैन एक्चुअली कंबाइन देम with the use of ternary operators as well. Okay, so how to combine them with the use of ternary operators? यहाँ पर जो मैंने ternary operator use किया था उसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, but now here we are having 3 options and therefore we will be having 2 conditions as well. So how do you use ternary operator for 2 different conditions? देखते हैं। ternary operator को multiple conditions के लिए लिखते कैसे हैं? You need to write your condition 1 here, फिर question mark, condition 1 के corresponding जो result 1 है वो लिख दो, उसके बाद कोलोन लगाएंगे, कोलोन के बाद आप लिखो, नाउ दिस कोलोन विल बी एक्टिंग एज एल्स इफ। ओके, एल्स इफ कंडीशन 2 डालो, ठीक है। कंडीशन 2 के बाद वापस से क्वेश्चन मार्क एंड अगेन कंडीशन 2 के करस्पॉन्डिंग जो आपका रिजल्ट होगा, जो आपके पास ऑप्शन होगा, तो फिर मैं यहाँ पर रिजल्ट 2 लिख रहा हूँ। ओके, एंड रिजल्ट 2 के बाद वापस से कोलोन लगाएंगे एंड आपके पास अगर कंडीशन 3 है तो एक और कंडीशन 3, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, दिस क्वेश्चन मार्क बेसिकली सिंबलाइजेस कि अगर कंडीशन 3 फुलफिल हुआ तब क्या करना है, देन यू विल बी श्योरली हैविंग एन ऑप्शन 3 दैट इज रिजल्ट 3 में लिख रहा हूं। लेट अस से यू आर हैविंग ओनली 3 कंडीशंस। ओके, तो इसके अलावा अब ये रिजल्ट 3 भी नहीं फुलफिल हुआ तब क्या, अब जब रिजल्ट 3 नहीं फुलफिल होगा देन आप कोलोन लगाना एंड उसके बाद वापस से हमें यहाँ पर रिजल्ट 4 लिख देना चाहिए। नाउ बेसिकली ये होता कैसे, ये काम कैसे कर रहा है, अगर कंडीशन 1 फुलफिल हो गया देन रिजल्ट 1, ओके, एंड वहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा फिर। बट अगर कंडीशन 1 फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, देन वी विल बी मूविंग टू द कंडीशन 2, ठीक है। अगर कंडीशन 2 फुलफिल हो गया रिजल्ट 2 एग्जीक्यूट होगा, एल्स अगर कंडीशन 2 भी फुलफिल नहीं हो रहा है देन वी विल बी मूविंग टू द कंडीशन 3। अगर कंडीशन 3 फुलफिल हो गया देन रिजल्ट 3 एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर मान लीजिए ये भी नहीं होता देन अब रिजल्ट 4 डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कोई कंडीशन चेक किए। इसको एक बेटर एग्जांपल से देख लेते हैं। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, लेट अस से दैट यू आर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स A, B एंड C। आपको निकालना है कि इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है। ओके, सो वी कैन डू अ थिंग लाइक, सबसे पहले क्या करना होगा, मैं कंडीशन लिखना होगा। सो व्हाट इज माय कंडीशन, द कंडीशन इज A इज ग्रेटर देन B एंड A शुड बी ग्रेटर देन C। अगर ऐसा फुलफिल हुआ देन मैं क्या करूंगा, आई विल बी सिंपली प्रिंटिंग A, उतना बड़ा A इज द लार्जेस्ट नहीं लिख रहा है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करना है, पुट अ कोलोन, B इज ग्रेटर देन C
and b is greater than a. अगर ऐसा हुआ then what is my option or what do I want to do? I want to simply print the value, the largest value, that is b. Okay, and मान लो अगर ऐसा भी नहीं हुआ then again put a colon and now this is the final option that we are having, so we don't need to write any other condition. चुपचाप simply अपना next option print कर देंगे, that is c. Let us do a thing, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर एंड लेट अस चेक सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं. सेम रिजल्ट आएगा तो दैट मीन्स आवर प्रोग्राम इज करेक्ट. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, नॉट कोलोन. यप्स, नाउ वी आर गुड टू गो एंड एंटर 3 नंबर. लेट अस से वी आर एंटरिंग 100 to 32,300. So b is the largest. Result using ternary operator is b. Simple as that. Okay. Let us check with one more input. Let us say that the three numbers are 120, 240 and 500. Okay, so c is the largest. Result using ternary operator is c, as it should be. Yep, so you could have done one more thing, like instead of writing this I could have taken a variable max and like instead of writing print there each and every time I could have written max is equal to printf के बदले ना यहाँ पर लिख देते हैं a. ठीक है, इससे क्या होगा, 3 बार प्रिंट नहीं करना पड़ेगा. एंड यहाँ पर b एंड यहाँ पर c. नाउ व्हाट दिस max is doing is, let me first print out the value of max and ये जब टर्नरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो फिर a is greater than b and a is greater than c. पहले ये वाला कंडीशन चेक करेगा. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई a को लेगा एंड उसको उठा के मैक्स में डाल देगा एंड इसके बाद तो कोई कंडीशन चेक होगी नहीं, है ना. इफ एल्स में भी तो वही होता है कि अगर मान लो a इज द लार्जेस्ट है तो उसके नीचे की तो कोई कंडीशन चेक होती नहीं है, तो a को उठाएगा मैक्स में डाल देगा. ठीक है, बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई दैट मीन्स ये कोलोन एल्स इफ का काम कर रहा है यहाँ पर. एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई दैट इज b इज ग्रेटर देन c एंड b इज ग्रेटर देन a एज वेल, तब क्या करेगा, b को उठा करके मैक्स में डाल देगा, एल्स c को उठा करके मैक्स में डाल देगा. एंड यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है मैक्स की वैल्यू. सो एंटर 3 नंबर. लेट अस से 45, 65, 25. सो b इज द लार्जेस्ट. यप्स, ऐसे क्या हो रहा है कि बार बार प्रिंट है, प्रिंट बी प्रिंट सी नहीं लिखना हो रहा है. सो दिस वाज हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर यूजिंग इफ एल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स. नो कई बार माइंड में कंफ्यूजन रह जाता है कि इफ के अंदर क्या इफ एल्स का थ्रेड आ सकता है. बिल्कुल आ सकता है. सो टू अंडरस्टैंड दैट थिंग आई जस्ट मेड 2 टेबल्स जिसमें मैंने एज के हिसाब से कुछ डिविजन्स किए हैं. ओके, लाइक मैंने कैटेगरी डिवाइड किया है एज के हिसाब से. सो बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, दैट इज 25. अगर आप 25 साल से बड़े हो तो टेबल 1 के में जो भी मैसेज है वो प्रिंट करना है. एंड अगर आप 25 साल से छोटे हो देन टेबल 2 के अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट करना हो. सो लेट अस क्विकली कोड इट डाउन. अब देखो, इस प्रोग्राम को करने के कई तरीके, बट मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट यस, इफ के अंदर जो है इफ एल्स इफ का भी थ्रेड आ सकता है एंड इवन एल्स के अंदर भी ऐसा थ्रेड आ सकता है. नॉट ओनली दिस एल्स, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एल्स इफ भी लिख सकता हूँ. ये सब छोटे मोटे कंफ्यूजन होते हैं. एंड एल्स के अंदर भी आप चाहो तो ऐसे थ्रेड चलाया जा सकता है, दैट इज नॉट एन इशू. तो बस इसी चीज को मैं बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ. सो देखो, मेरा बेसिस ऑफ डिवीजन क्या था भाई, अगर एज जो है वो 25 से ज्यादा है नहीं. सो इफ एज इज ग्रेटर देन 25, यानी मेरा पहला कंडीशन क्या है, सब कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहला कंडीशन की बात कर रहा हूँ दैट इफ एज इज ग्रेटर देन 25 तो मैं यहाँ पर कुछ करूंगा एंड इफ एज इज लेस देन 25 तो मैं यहाँ पर कुछ करूंगा. लेट अस डू अ थिंग, यूजर नेगेटिव एज भी तो डाल ही सकता है. सो यहाँ पर लिख देते हैं इफ एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 25. अब ये मैंने क्यों किया, देखो अगर एज ग्रेटर देन 25 आएगा, जो यूजर एंटर देगा एज वो अगर ग्रेटर देन 25 है तो मैं इफ वाले ब्लॉक के अंदर जाऊंगा. अगर वो 1 से 25 के बीच में है तो मैं एल्स इफ वाले ब्लॉक में जाऊंगा. एंड अगर मान लो उसने ऐसा दे दिया 0, -1, -2 या फिर कुछ भी और, तो मैं एल्स के कैटेगरी में जाऊंगा. सबसे पहले इफ वाले को सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो, इफ एज इज ग्रेटर देन 25, अगर एज 25 से बड़ा है तो उसके अंदर भी कैटेगराइज किया था मैंने कि दैट इसके अंदर जो पहली कैटेगरी थी दैट वाज इफ योर एज इज ग्रेटर देन 25 एंड इज लेस देन 40, then you will be placed in which category? Adult. So if I want to code this particular thing, so I need to write if age is greater than 25 and less than 40. So put an and then write age is less than 40. Now what do you want to do? I want to print the category. So printf, I will be calling them as adult. Put a backslash n here so that everything comes up in a new line.
एंड अगेन एक छोटा सा मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, कुछ भी, लेट अस से आई विल बी राइटिंग पुश योर लिमिट्स, रैंडम ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया है। द अदर कंडीशन विल बी इफ योर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, sorry there should be 40 and less than equal to 65. Okay, so if I want to write this thing, then I will have to include an else if. Now again the condition is age is greater than equal to 40 and age is less than 65. Okay, so we will be putting them under the category adult comma you have become an uncle, and for them the message will be focus on your health. तीसरी जो एज कैटेगरी थी that was for the persons beyond 65. okay, so अब मुझे यहाँ पर सिर्फ else लिखना चाहिए क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं है। मैंने कैसे कैटेगराइज किया था, 25 से 40, 40 से 65 एंड 65 से बियॉन्ड। एंड अगर किसी का एज है लाइक समवॉट लाइक 70, सो उसके लिए हमें अलग से कंडीशन नहीं लिखनी है बिकॉज 70 है, दैट मीन्स वो इन दोनों को क्रॉस करके ही आया होगा। ओके, सो वी विल बी इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन एल्स। जो कैटेगरी होगी वहां पर हम लोग रख देंगे अंकल कॉमा सीनियर सिटीजन, एंड फॉर देम द मैसेज विल बी लेट अस प्रिंट लेट्स से एंजॉय योर रिटायर्ड लाइफ। अब देखो ये जो हमने टेबल था इसको हमारा काम हो गया है ना, 25 से 40 का भी लिख लिया, 40 से 65 का भी लिख लिया, 65 से ज्यादा का भी लिख लिया। नाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टेबल। सो चलो इसका भी कोड लिख लेते हैं। सो अगर मान लो जो यूजर ने एज एंटर की है दैट इज लेस देन 25 बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो फिर मैं एल्सिफ के अंदर लिख रहा हूँ। सो इसके अंदर जो सब कैटेगरीज थी दैट वर लाइक इफ योर एज इज बिटवीन 1 and 3। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा एल्सिफ के अंदर भी इफ पहले लगाएंगे एंड लगाएंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and age is less than equal to 3, then the category will be toddler small e let us say, and for them the message will be let us say eat sleep and repeat। बच्चे लोग और करते ही क्या हैं, if the entered age is greater than 3 then what, like between 3 and 13। so again मैं एक और कंडीशन चेक कर रहा हूँ। so again I will be writing else if and again the condition will be greater than equal to 3 and the age should be less than 13। okay, so for them the category will be kiddo and इनके लिए लिखता हूँ do not let phone ruin this phase। 3 से 12 साल के जो बच्चे हैं आजकल वो बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं एंड ये जो फोन है उनकी स्ट्रॉबेरी दुनिया को बिगाड़ देते हैं। ओके, सो प्लीज डू नॉट लेट फोन ruin दिस ब्यूटीफुल फेज। एंड हमारे पास अभी एक और कंडीशन है कि अगर जो एज है दैट इज बिटवीन 13 and 25। सो अगेन आई विल बी यूजिंग एल्स इफ। तो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज इज लेस देन 20। सो 13 से 20 साल के बच्चे यानी कि द कैटेगरी विल बी ऑब्वियसली टीनेजर एंड फॉर देम द मैसेज विल बी लेट अस से लाइफ्स गोना चेंज। एंड अब हमारे पास एक कैटेगरी और बचती है दैट इज वो एज जो कि 20 से 25 के बीच में रहेगा। यूजर जो सपोज एज दिया लेट अस से 24। ओके, सो वो 1 से 3 में नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा। 3 से 13 में नहीं जाएगा, 13 से 20 में नहीं जाएगा, देन डेफिनेटली वो 20 से 25 वाले में जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कोई कंडीशन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा एल्स के अंदर कैटेगरी लिख दूंगा एंड द कैटेगरी विल बी यू बिकम एन एडल्ट। एंड 20 से 25 के जो एज वाले पीपल रहेंगे उनके लिए मैसेज ये वाला रहेगा, हैव पेशेंस, टाइम इज टफ बट एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड ऐसा क्यों, बिकॉज मैं खुद 20 से 25 साल का हूँ, मुझे पता है यहाँ पर क्या हाल हो रहा होता है। एंड एल्स, अब ये एल्स पार्ट में क्या लिखें, एल्स पार्ट में तब आएगा हमारा कंपाइलर जब यूजर ने जो एज एंटर करी हो वो 1 से भी कम हो, है कि नहीं। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं एलियन है तू। सो वी आर फिनिश विद आवर प्रोग्राम एंड लेट अस रन द प्रोग्राम। सो लेट अस से एक बार -1 डाल के देख लेते हैं। ओके, कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा। अच्छा, क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, बिकॉज मैंने यहाँ पर एंड नहीं लगाया। ओके, वापस से रन करते हैं प्रोग्राम को एंड लेट अस सी, इस बार -1 प्रिंट करके देखते हैं। एलियन है तो सही है। एंड लेट अस से मैं यहाँ पर डालता हूँ 70। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर कैटेगरी आ गया एडल्ट कॉमा सीनियर सिटीजन, एंजॉय योर रिटायर्ड लाइफ। ठीक है, एंड लेट अस से मैं 23 डालूंगा, देन adult, have patience, time is tough but everything will be fine, right? So this is the message। अगर मैं for example let us say 1 डालता हूँ, then toddler, hey smallie, eat sleep repeat, this is the message। okay, so ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है and I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई किया कि जो भी डाउट्स होते हैं if else को पढ़ते वक्त
कि इफ के अंदर एल्स आ सकता है नहीं, इफ के अंदर एल्स इफ आ सकता है नहीं, व्हाट आर टर्नरी ऑपरेटर्स मैंने ट्राई किया कि सब क्लियर हो जाए। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो में बाय।